Good morning, my dear students. I welcome you to your English class. Children, after 4 days of Diwali holidays, we are meeting again. We are back. And children, I'm sure that you must have enjoyed the Diwali festival, right? So, what all you have done? I'm sure your answers are that, ma'am, I decorated my house, I cleaned my house, and then I ate special sweets, loads of sweets. I ate special dishes that were prepared at home. I wore new clothes, I did some shopping, and what else you will say? I did puja and I decorated my house with lights, diyas, candles, and what else? I made rangoli, right? I know your answers. Well, children, I must say that you had loads of fun, right? Well, this time in Varanasi, though the crackers were banned, still I was hearing that some people were bursting crackers. So maybe you also have had some crackers. You must have somewhere you have got the crackers from somewhere. I don't know from where you managed, but maybe, right? Okay, children, but we need to take care that why this initiative was taken by the government of Uttar Pradesh, because the air quality level of Varanasi is not good, right? If the quality of air that we breathe in, you all know that हमको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और हवा जो हम सांस लेते हैं, अगर सोचो उस हवा में पॉइजन है, तो क्या हम सांस लेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना. That's why, to stop getting the air more polluted, this initiative was taken, and we need to respect that, right, children? I did not burst a single cracker. I really had this time a pollution free Diwali. I enjoyed the Diwali by lighting up the other lamps, by doing the puja, by decorating home, by preparing special dishes, and celebrating the festival uh, with my near and dear ones, with my family members, and we had great fun together, right? So this is actually the meaning of celebrating festivals. But the meaning of celebration is getting changed, but we need to understand that the basic things can never ever be changed, right, children? Well, now we have spoke about Diwali and it is already now past. So there's no meaning of speaking about it. So children, let's now start our today's class. So in our today's class, we are going to take a topic from your grammar book. Okay, so in our previous grammar topic, if you can remember, we have been listening to the and I have been explaining about the action words, right? That is called as verb. So what are action words? The words that tell about the noun, that what he or she is doing or what action has been performed. That word is called as action word or verb. Like I am talking to you. So what I am doing with you? I am talking with you. So talking is an action that is telling me about that is telling you or me or to others that what me and you, we both are doing. So that is the action word or verb, right? So now moving further, we are just moving a step further for this verb. Now you know that what are action words or verb. In a sentence, किसी भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, वर्ब भी होगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स. आज हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे. सो नाउ जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन so that it's easy for you to understand and it's easy for me also
to explain. So just give me a second. And here you can see, children. So our today's topic, not chapter number 9, it is in fact chapter number 10. Okay, so today we are going to know about am, is and are. Now first you need to understand that what is am, is and are. Am, is and are the helping verbs or be verbs that are used before the action words. किसी भी एक्शन वर्ड के पहले हम is, am या are लगाते हैं उस एक्शन वर्ड को हेल्प करने के लिए. जैसे I am talking, तो टॉकिंग यहाँ पर एक्शन वर्ड है, लेकिन टॉकिंग के पहले मैंने क्या लगाया? आई एम मैंने लगाया. सो दैट्स वाई एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करता है मेन वर्ब को. मेन वर्ब यहाँ पर टॉकिंग है, लेकिन टॉकिंग के साथ पहले जो उसको हेल्प कर रहा है दैट इज एम. सो आज हम सीखेंगे what is am, is and are and how to use it. Okay, so here as I said to be, हम being verb भी इसे कहते हैं. am हमेशा बेटा यूज होता है, याद रखिएगा ये रूल. बस अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो देन यू नो दी रूल और आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. सो हमेशा am को यूज हम कहाँ करते हैं? विथ आई. जहां पर आई वर्ड आएगा, जिस भी सेंटेंस में आई वर्ड आएगा, द वर्ड आई कम्स, सो देयर वी आर गोइंग टू यूज वर्ड, वी आर गोइंग टू यूज आई. हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? हमेशा एम यूज करते हैं. एम ही यूज होता है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई डैश अ बॉय. सो मैं एक बॉय हूँ, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डैश अ बॉय. बॉय के बारे में, मैं वो बॉय अपने बारे में बता रहा है. सो यहाँ आपने देखा फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? आई आ रहा है. सो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एम, राइट. बीइंग वर्ब आएगा एम. आई एम अ बॉय, राइट. नाउ विथ इज, इज किसके लिए? एम होता है मेरे लिए. इज यूज होता है फॉर वन पर्सन, वन थिंग और वन प्लेस. जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, एनीथिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट विच इज वन इन नंबर, ठीक है, एक है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा. हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज. इज किसके किसके साथ लग सकता है? Is can be used with he, she and it. He, she and it. Like, see for an example, he dash my brother. ठीक है, he dash my brother. ओहो, सो ही डैश माई ब्रदर. सो यहाँ हम क्या करेंगे? ही मीन्स किसके लिए यूज होता है? वन बॉय के लिए. प्रनाउन में आपने पढ़ा था ना, ही इज यूज्ड फॉर अ बॉय. एंड हाउ, फॉर हाउ मेनी बॉय? वन बॉय. शी किसके लिए यूज होता है? फॉर गर्ल. फॉर हाउ मेनी गर्ल? वन गर्ल, राइट. इट किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर एनिमल और फॉर थिंग. किसी एक एनिमल के लिए या किसी एक थिंग के लिए यूज होता है. प्लेस के लिए भी इट यूज होता है. सो इट इज यूज्ड फॉर एनी प्लेस, दैट इज वन, राइट. सो ही डैश माई ब्रदर. अब देखो, ही मीन्स वन बॉय, तो वन बॉय के साथ क्या यूज होगा? इज यूज होगा. ही इज माई ब्रदर, राइट. इट डैश माई पेट. ये मेरा पेट है. तो पेट तो जनरली एनिमल्स ही होते हैं, राइट. तो इट के साथ क्या होगा? हमेशा ये देखो क्या है रूल, इट के साथ क्या यूज होता है? इज. सो इट इज माई पेट, बिकॉज ये वन इन नंबर है. शी डैश going to school, so she is going to school, right. So with I you are going to use am,
with he, she or it, you are going to use is. Is always used with thing which is one in number. एक कोई एक चीज है तो वहां क्या लगेगा? is. Now when then things where things which are more than one, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, वन, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, 10 है, 12 है, 20 है, एक से ज्यादा अगर हो गया तो हम इज ना एम यूज करेंगे ना इज यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग आर. व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? वी विल यूज आर. So the words like the pronoun words like we का मीनिंग क्या होता है? हम लोग, राइट. अब हम लोग में 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. हम लोग मीन्स जिसमें मैं भी हूँ, वी आर फ्रेंड्स, राइट, जिसमें मैं भी हूँ. दे, like you can see they means वे लोग, एक से ज्यादा लोग, वे लोग जिसमें मैं नहीं हूँ, I am not there, but वे लोग, एक, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 10, 20, 100 भी हो सकते हैं. more than one, right. and you का मीनिंग क्या होता है बताओ? तुम या आप. अब आप कहेंगे कि मैम मैं तो एक ही हूँ, वन हूँ. तो आपने तो भी कहा कि वन के साथ इज लगता है और मैनी के साथ आर लगता है. लेकिन आपको पता है यू क्या है? यू एक जो ऐसी चीज है वो रूल को फॉलो ही नहीं करता. वो बिल्कुल एक बार की बात है, जब यू आया था, ही टुक बर्थ, तो उसने बोला मैं अपने आप को ही, शी और इट के साथ नहीं रख सकता. मेरे बेस्ट फ्रेंड वी और दे हैं, इसीलिए मैं उनके साथ ही रहूंगा. तो ही, शी, इट ने कहा कोई बात नहीं यू, आप चले जाइए आर के पास, आप अपने फ्रेंड वी और दे के पास चले जाइए. तो यू अपने आप को कभी भी वन नहीं समझता, जबकि यू का मीनिंग क्या होता है? आप, तुम, मीन्स वन पर्सन, है ना. हम बोलते हैं ना यू, राइट. लेकिन यू का मीनिंग यू हम तब लगाते हैं जब ज़रूरी नहीं कि हम वन को डिनोट कर रहे हैं. हाँ, आप लोग जैसे क्लास में रहे, अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो यू ऑल आर सिटिंग ऐसा बोलते हैं ना. कभी हम एक से ज़्यादा भी बच्चों के लिए बोलते हैं, जैसे यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, तो मैं आप सब को बोल रही हूँ. सो दैट्स वाई यू कहता है मैं एक नहीं हूँ, मैं तो मैनी हूँ. That's why you को हम किस में कंसिडर करते हैं? प्लूरल में, मैनी में, राइट. तो याद रखिएगा you हमेशा मैनी में आता है, कभी भी सिंगुलर में, वन में नहीं आता है, राइट. So you is counted as many. So the words like we, you, they, और राम एंड सीता, सीना एंड मीना, रोहित एंड मोहन, ये सब प्लूरल हो गए, मोर देन वन हो गए. सो उनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग आर. लाइक दे डैश, दे डैश, दे डैश डांसिंग, ठीक है. दे डैश डांस वेल, दे डैश डांस वेल, वो लोग अच्छा डांस कर सकते हैं, राइट. सो दे, यहाँ पर आपको बस फर्स्ट वर्ड देखना है. दे का मीनिंग क्या होता है? एक से ज्यादा, वे लोग. सो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? आर. दे आर dancing, or they are dancing well, right. They are dancing well, right. So this is how you can use the be verbs is, am, are. So कैसे आपको याद रखना है बताओ मुझे? बस एक ही बात का ध्यान रखना है. क्या आपको ध्यान रखना है कि जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं क्लीन कर दूं so that things are very much visible to you, क्योंकि ये बहुत ही shabby हो गया है, right.
So you have to understand this very simple thing that I के साथ हमेशा क्या यूज होगा, am. he she और it के साथ यूज होगा is, and we you and they के साथ क्या यूज होगा, are. right now एक चीज मैं आपको बता दूं, देख लो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कैसे यूज कर रहे हैं. लाइक सी दिस मैन इज सेइंग, दिस पर्टिकुलर मैन यू कैन सी he is saying I am. so I के साथ क्या यूज हुआ, am. you are. जब मैं किसी और की बात कर रही हूँ, आप, देन you के साथ are यूज होगा. he, मैं एक बॉय की बात कर रही हूँ तो he के साथ is होगा. he is a man. right now when I am talking about one girl, she is a sweet girl. now when we are talking about more than one, एक से ज्यादा लोगों की बात करें, जैसे we, तो we के साथ यूज होगा are. we are family, we are friends. right now very important children, very important. am is an are. am is an are, they are always and always used with present in present tense. जब कोई भी चीज हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, अभी है, तभी हम am is या are लगा सकते हैं. anything which has happened in the past or which will happen in the future, we cannot use is, am or are for helping verbs. हम वहां पे is, am, are नहीं लगा सकते. मैं अगर बोलूं मैं कल स्कूल गई थी, तो आई कांट से आई एम गो टू स्कूल yesterday. देन मुझे बोलना होगा आई वेंट टू स्कूल, आई हैड been visiting the school yesterday, or I had visited the school yesterday. right so हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में एनीथिंग विच इज हैपेंड इन द प्रेजेंट टाइम, जो हो रहा है या जो होता है इन जनरल, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट मीन्स अभी जो है. there are three types of tenses children. एक है past tense, एक है present tense, एक है future tense. past means बीता हुआ कल. right present tense means अभी जो समय है, जो चल रहा है, जो है. and future tense means आने वाला कल. right so we use is, am or are in the प्रेजेंट टेंस, जब हम अभी की बात कर रहे हैं, जो समय अभी है. राइट हम उस जगह पे इज, एम, आर नहीं लगा सकते. जो चीज बीत गया है या जो चीज आने वाला है, उसके लिए दूसरे बी वर्ब्स लगते हैं, उसके लिए दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगी. बट अभी के लिए आपको इतना जानना है कि इज, एम, आर कहाँ लगता है, प्रेजेंट टेंस में, जब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. राइट so now from your book I want you all to open this book, lesson number 10, is, am, are. now here in this table you can see children, I के साथ am, I am a student. we, you, they, these, the children, इनके साथ क्या यूज होगा, are. the children are students. children, people, ये सब प्लूरल है, many है. right boys प्लूरल हो गया. प्लूरल आपने पढ़ा था ना वन मैनी में, you, we, they, the girls, the boys, the birds. so उनके साथ are होगा. right now is कहाँ यूज होता है, is used with singular thing, anything which is one. right like he, एक boy, she, one girl, Zubin, one person. we are talking about Tanaz, we are talking about one particular person. so we are going to use which helping verb, we are using is with it. right like he is a student, she is a student, Zubin is a student, or Tanaz is a student. right so can we do this exercise now? Are you all ready? Have you understood it well? so let's then start it. Fill in the blanks with is, am or are.
आपको इज, एम या आर सही जगह लगाना है। आई डैश राहुल। सो देखो वर्ड ब्लैंक के आगे क्या है, कौन सा वर्ड है, आई। सो आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, am. Very good. I am Rahul. What is the second sentence? I dash a student of city public school. मैं city public school का student हूँ. So again I is there. तो I के साथ में क्या helping verb होगा? Am. Right. Vani dash my sister and classmate. Vani मेरी सिस्टर है और क्लासमेट भी है। सो कितनी गर्ल के बारे में बात हो रही है, वन गर्ल ना, वानी के बारे में बात हो रही है, तो वन गर्ल। तो वन गर्ल के साथ क्या लगेगा, मैंने क्या बताया था, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एम, आर या इज यूज होगा ना किसी भी एक पर्सन के लिए। तो वानी इज माई सिस्टर, राइट। वी डैश ट्विंस, हम लोग ट्विंस हैं। ट्विंस का मीनिंग क्या होता है, जुड़वा। ट्विंस मीन्स जुड़वा, राइट। सो हम लोग जुड़वा हैं। सो अब बताओ वी का मीनिंग यहाँ कितने लोग हो गए, यहाँ पर राहुल एक बॉय हो गया और उसकी सिस्टर वानी, तो कितने लोग हो गए, 2 लोग। अब मोर देन वन हो गया, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या लगाना है, आर। यस, वी आर ट्विंस। आर पेरेंट्स डैश वेरी केयरिंग, हमारे पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं। तो पेरेंट्स में कितने मेंबर्स होते हैं बताओ, मम्मा एंड पापा। सो हाउ मेनी मेंबर्स, 2 मेंबर्स, राइट, मम्मा एंड पापा। सो 1 है या मैनी है, ये मैनी में काउंट होगा। तो मैनी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम, आर या इज, are use करेंगे। Yes, our parents are very caring, right? Now let's turn the next page. Number B, you dash a student. आप एक student हैं। So मैंने क्या बताया था, you अपने आप को किस में नहीं सोचता, one में नहीं समझता है, वो अपने आप को मैं नहीं समझता है। तो you के साथ हम क्या यूज करेंगे, are. You dash in class 2, आप class 2 में हैं। So you के साथ क्या होता है, are, you are in class 2. Rita and Sia dash also students. रीता और सिया वो भी students हैं। So Rita and Sia means how many children? 2 children, 2 girls we are talking about. So that's why we are going to use are. They dash sisters, वे लोग sisters हैं। So they का meaning एक से ज़्यादा, वे लोग। So it means more than one. So what helping verb will be used here? Are. This is Soham. He dash Reha's brother. ये सोहम है, रेहा का ब्रदर है। ही के साथ क्या होता है, is. रेहा डैश अ गुड गर्ल, रेहा एक गुड गर्ल है। सो रेहा के साथ क्या होगा, is. शी डैश वेरी हेल्पफुल, शी के साथ क्या होगा, वन गर्ल, सो शी इज वेरी हेल्पफुल। सोहम एंड रेहा डैश सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स भाई, बहन भाई या भाई बहन या बहन बहन दो, राइट। सो सिबलिंग्स उसे कहते हैं। सोहम एंड रेहा ये सिबलिंग्स हैं। तो बताओ कितने मेंबर्स की बात हो रही है, कितने लोगों की, 2। सो मोर देन 1 हो गया, तो क्या होगा, आर। We dash in the greenhouse. We are in the greenhouse. विधि dash our house captain. विधि हमारी हाउस कैप्टन है। तो कितनी गर्ल की बात हो रही है, 1। तो क्या होगा, is. मयंक डैश आर वाइस कैप्टन, मयंक हमारा वाइस कैप्टन है। तो कितने बॉय की हम बात कर रहे हैं, मयंक 1 बॉय। सो वी आर गोइंग टू यूज is. डैश यू माई अंकल, आप मेरे अंकल हैं। सो यू के साथ ध्यान दो, यहाँ यू पहले नहीं है लेकिन यू बाद में है, लेकिन यू को ध्यान देना है आपको, प्रनाउन वर्ड को। देखो ब्लैंक के बाद यू आ रहा है ना, तो यहाँ क्या आया, यू आया। तो यू के साथ क्या यूज करेंगे हम, आर। आर यू माई अंकल, आई डैश नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। डैश यू माई फादर्स ब्रदर, आर यू माई फादर्स ब्रदर। Yes, so this is how we are going to do it. So बताओ जल्दी जल्दी, अभी I के साथ क्या यूज होता है, am. You के साथ are. He के साथ is. She के साथ is.
It के साथ is, we के साथ are, and they के साथ are. Great. So you now know the rules how to do it. Okay. So now what you are supposed to do, you have to now try it on your own. अब आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है. On Thursday, I will ask you one by one. मैं कुछ worksheets लेकर आऊंगी. I will come with worksheets in the class, and one by one I will be asking you questions. So till then you have to learn the rule. मैंने आपको rule बताया ना, is am are के साथ क्या rule आपको apply करना है. So you have to learn it and you have to practice the sentences more and more so that you are thorough with this particular thing. Okay. So till then children, just take care of yourself, and for today your homework is to do 2 pages of cursive writing in your cursive writing book. So please write down today's date and then mention homework and write down 2 pages of cursive writing. We will meet again on Thursday. Till then, take care of yourself. Have a great day ahead.